Today our topic is tissues. Today we are going to start the chapter tissues. So what the tissues are actually? Cells, when make a group, they form a tissue. So we can say tissues are groups of cells. Every living organisms are made up of cells, even the plants or animals or human beings. So every living organisms are made up of cells, that we can say they are made up of tissues, because the group of cells makes a tissue. So in this chapter, we have to focus on division of labor and cell specialization. So what these words means? The first is there are unicellular organisms as well as multicellular organisms. Unicellular organisms are like amoeba, paramecium, etc. And multicellular organisms, we can say human and animals. So unicellular means the organisms that are made up of from one cell only. Uni means one, and in multicellular organisms the organisms are made up from many cells. Multi means many cells. So division of labor means that in multicellular organism many cells makes a groups, makes it tissues. So in unicellular organism there is only one cell, so that means each and every life process done by only one cell. Life processes means movement, breathing, digestion and excretion. Whereas in multicellular organisms, some cells are only focusing on the movements. That means tissue that focus on movement, and few tissues focus on breathing, as well as few tissues that needs to focus on digestion. So that means every group of cells have their different functions. For example, अगर मैं आपको बोलूं कि हमें आज बायोलॉजी भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करना है और मैथमेटिक्स भी करना है, so that would be difficult for us to understand all the subjects. So इसमें क्या है, वही कुछ सेल्स अपना काम कर रहे हैं जिनका काम है सिर्फ मूवमेंट पे ही फोकस करना, कुछ सेल्स ने अपना ब्रीदिंग पे फोकस करना है, कुछ सेल्स का काम क्या है, डाइजेशन पे फोकस करना. वेयर एज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये सभी काम एक ही सेल को करने हैं. सो इसमें डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता. वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिविजन ऑफ लेबर रहता है. सो हर सेल मीन्स एवरी टिश्यू, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो हर ग्रुप ऑफ सेल्स का अपना एक स्पेशलाइजेशन है. कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स की स्पेशलाइजेशन क्या है कि ब्रीदिंग में ही उनको काम करना है, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स की स्पेशलाइजेशन है डाइजेशन. इसमें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक अमीबा में एक ही सेल है, और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारी एक्टिविटीज जो असेंशियल होती हैं लिविंग रहने के लिए, वो सभी काम अमीबा को, एक ही सेल को करने पड़ते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट इज, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टिश्यू, so the definition is group of cells which work together to perform particular job. इसमें particular job लिखना is very much essential. So particular job जैसे कि मैंने आपको बताया, breathing करना, excretion, digestion. So हर ग्रुप ऑफ सेल्स का अपना एक स्पेशलाइजेशन है जो मिलजुल के काम करते हैं. उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज. ऐसे नहीं कि कोई भी लाइक कुछ सेल्स हो गए हमारे ब्रीदिंग के, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, कुछ सेल्स हैं हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व है, उनके ग्रुपिज्म को हम टिश्यू नहीं बोलेंगे. इसमें लिखना है ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब. एक ही जॉब के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनको हम बोलते हैं टिश्यूज. So you can watch out the diagrammatic illustration of tissues. Here is the tissue. These are cells. So this group of cells makes a tissue. The next is, there are plants tissue as well as animal tissue. अब क्या है बैड न्यूज, हमें दोनों ही टिश्यूज को पढ़ना पड़ेगा, because we can see plants and animals की structure are very different from each other. कैसे different है? Like plants are fixed, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होती. Whereas in animals or human beings, they have to move for food and shelter.
द नेक्स्ट डिफरेंस इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ। नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर एक स्टेम काफी लंबी हो गई वेयरएज दूसरी स्टेम है शॉर्ट इन लेंथ है। वेयरएज ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ जो होती है यूनिफॉर्म ही रहती है। अगर टाइगर की फ्रंट लेग्स बढ़ रही हैं टाइम के साथ साथ, तो उसकी जो हाइंड लेग्स है वो भी बड़ी होंगी, राइट। ऐसे नहीं है कि फ्रंट लेग्स तो उसकी बढ़ रही हैं वेयरएज हाइंड लेग्स उसकी वैसे ही रह रही हैं। The third difference is plants obtain food by photosynthesis. That means हमें पता है कि photosynthesis होती है प्लांट्स में, उससे ही फूड की प्रिपरेशन होती है। photosynthesis कैसे होती है, जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वेयरएज एनिमल्स हमें पता है हम अपना फूड थोड़ी ना खुद प्रिपेयर करते हैं, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स। सो हमें फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है। प्लांट्स में क्या है, सिंपलर बॉडी स्ट्रक्चर है, वेयरएज एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। दैट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्लांट टिश्यूज, बिकॉज प्लांट और एनिमल्स की स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शंस अलग हैं, तो जायज सी बात है उनके टिश्यूज भी अलग होंगे। सो पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द चार्ट। Firstly, plant tissues are categorized into two categories, meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissues are further classified into three groups, apical, lateral and intercalary, whereas permanent tissues are grouped into two, simple and complex. Now, the permanent tissue is further classified into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and protective, whereas complex is divided into two, xylem and phloem. That protective simple permanent tissue further classified into epidermis and coque. आपको ये सारा चार्ट देके घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इट इज रियली वेरी इजी। फर्स्टली वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स ओनली, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी टिश्यूज। सो फर्स्ट इज मेरिस्मेटिक tissue, that is meristem. This tissue is responsible for growth in plants. प्लांट्स की ग्रोथ होती है, हम देखते हैं कि हमने एक प्लांट को ग्रो किया तो वो पहले छोटा था और धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती गई, उसकी ग्रोथ होती गई। सो वो किसकी वजह से हो रही है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये टिश्यू, प्रेजेंट एट लोकेशंस वेयर प्लांट ग्रोज लाइक टिप ऑफ स्टेम्स की टिप पे, हेयर। सो दिस इज टिप ऑफ द स्टेम। Cells in these tissues can divide and form new cells. अब मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है, इसके जो सेल्स हैं डिवाइड करते रहते हैं। क्यों डिवाइड करते रहते हैं, ताकि नए सेल्स बनते रहें। नए सेल्स क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें ग्रोथ करवानी है प्लांट की ग्रोथ किससे होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। अब हमने पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम होता है हमेशा टिप of the stem या tip of the roots में, intercalary and the third one is lateral. So these are categorized into three, apical meristem, lateral meristem and intercalary. So apical किस में हेल्प करता है, tip of roots and stem की ग्रोथ में। lateral meristem कहाँ पे हेल्प करता है, हमारा increases girth of trunk, that is the diameter। ट्रंक का डायामीटर, गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कौन करता है, लेटरल, साइड्स पे उसकी। इंटरकैलरी, नोड्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, जहां जहां पे भी हमारे लीव्स या स्टेम्स की नोड्स होती हैं वहां पे हमारा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द नोड्स एंड हियर इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट। सो दिस होल इज द about meristematic tissue. In the next video, we are going to learn about